بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلامته أن يصح الإخبار به لا عنه ودخول قد والسين وسوف والجزم والتصريف إلى الماضي والمضارع وكونه أمرا أو نهيا واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت ضربتي ضربت والتاء التانيث الساكنة نحو ضربت ونون التأكيد فإن كل هذه من خواص الفعل ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة وحد الفعل یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل کی تعریف بیان فرماتے ہیں اور فعل کی تعریف ذکر کرنے کے بعد وعلامتہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل کی علامات بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فعل کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہیں ہوتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ فعل محکوم تو ہوتا ہے لیکن محکوم علیہ نہیں ہوتا۔ محکوم ہوتا ہے، اس کے ذریعے حکم لگایا جاتا ہے لیکن وہ محکوم علیہ نہیں ہوتا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ فعل کے شروع میں قد داخل ہوگا، جیسے قد سمع اللہ۔ تیسری علامت یہ ہے کہ فعل کے شروع میں سین آ جائے گا، جیسے سیعلمون۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں سوف آ جائے گا، کلا سوف تعلمون۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ فعل کے آخر میں جزم آ جائے گی، فعل کے آخر میں جزم آ جائے گی، جیسے لم یضرب۔ اور چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ ماضی کا صیغہ ہوگا، جیسے ضرب ضرب ما ضرب ما ضرب۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ وہ مضارع کا صیغہ ہوگا، جیسے یضرب ینصر۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ وہ امر کا صیغہ ہو، جیسے اضرب آپ مارو۔ نویں علامت یہ ہے کہ وہ نہیں کا صیغہ ہوگا، جیسے لا تضرب تم نہ مارو۔ دسویں علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں ضمائر بارزہ مرفوعہ آئیں گی، یعنی وہ ضمیر جو نظر آتی ہے وہ آئے گی اس کے آخر میں، جیسے ضرب تا تا زبر تا، یہ ضمیر مرفوع بارز ہے۔ ضمیر مرفوع بارز اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو ترکیب میں فاعل بنتی ہے۔ اسی طرح اگلی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا تانیث ساکن آئے گی، جیسے ضربت، اس کے آخر میں دیکھیں ضربت تا تانیث ساکن ہے۔ اسی طرح یہ علامت بھی ہے کہ اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ، جیسے لا یضربن، یا نون تاکید خفیفہ، جیسے لا یضربن، یہ آئیں گے۔ فإن كل هذه من خواص الفعل، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ جتنی بھی علامتیں بیان ہوئی ہے کہ فعل صرف اخبار بھی ہوتا ہے، اخبار عنہ نہیں ہوتا، کہ اس کے ساتھ تو خبر دینا صحیح ہوتا ہے، یعنی وہ مسند تو ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ محکوم تو ہوتا ہے، محکوم علیہ نہیں ہوتا، اس کے ذریعے حکم تو لگایا جاتا ہے لیکن اس پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ اسی طرح وہ ماضی کا صیغہ ہو، امر کا، نہیں کا، مضارع کا، اس کے شروع میں سین آ جائے، سوف آ جائے، تو یہ سارے جو ہم نے علامتیں پڑھی ہیں یہ فعل کے خواص ہیں، اور خواص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ علامتیں صرف فعل ہی کے اندر پائی جائیں گی، حرف اور اسم کے اندر یہ علامتیں نہیں پائی جائیں گی۔ ومعنى الاخبار به، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو پیچھے ہم نے کہا کہ فعل اخبار بھی ہوتا ہے، اخبار عنہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل محکومن بھی ہوتا ہے۔ محکومن بھی کا مطلب کہ اس کے ذریعے کسی پر حکم لگایا جاتا ہے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اب مارنے کا حکم آپ نے زید پر لگایا ہے، مارنے کے اوپر کسی چیز کا حکم آپ نے نہیں لگایا۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل کی وجہ تسمیہ بیان فرماتے ہیں کہ فعل والا معنی اصل کے اندر مصدر میں پایا جاتا ہے، تو اصل یہ نام جو ہے فعل یہ مصدر کا ہے،
तो मस्तर का नाम फेल को दे दिया। मस्तर का नाम किसको दे दिया? फेल को दे दिया, क्योंकि फाइल का जो फेल होता है वो हकीकत में मस्तर ही होता है। जैसे अज़रबु मारना, तो आपने कहा ज़रब ज़ैद, जैद ने मारा। अब माजी के अंदर सिर्फ जमाना तब्दील हुआ है, बाकी मारने वाला माना वही मस्तर वाला इसके अंदर भी पाया जाता है। तो मस्तर वाला माना किसको दे दिया? फेल को दे दिया, क्योंकि फाइल का जो फेल होता है हकीकत में वो मस्तर ही होता है। वहद्दुल हरफी कलिमतुन ला तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा बल तदुल्लु अला मानन फी गैरिहा नहवु मिन फ़इन्न मानाहा अल इब्तिदाउ वहिय ला तदुल्लु अलैहि इल्ला बअद ज़िक्रि मा मिन्हु अल इब्तिदा कल बसरती वल कूफती मसलन तक़ूलु सिरतु मिनल बसरती लिल कूफा वहद्दुल हरफी। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह हर्फ की तारीफ बयान फरमाते हैं कि हर्फ ऐसा कलिमा होता है कि जो अपने माने पर मुस्तकिल दलालत नहीं करता, बल्कि उसका माना बयान करने के लिए उसको दूसरे अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है, फिर जाकर वो अपना माना बयान करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मिन, इसका माना है से। अब मिन का माना से ये मुस्तकिल माना नहीं है, बल्कि इसको समझने के लिए इसके साथ आपको दूसरे अल्फाज लगाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सिर तो मिनल बसरत इलल कूफा, कि मैं बसरा से लेकर कूफा तक चला। अब से का माना दूसरे अल्फाज से मिलकर मुकम्मल हो गया कि मैं बसरा से लेकर कूफा तक चला। अब मिन का माना से कहते रहे तो बात समझ में नहीं आती। तो अलामत हो, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह हर्फ की अलामत बयान फरमाते हैं कि हर्फ की एक अलामत तो ये है कि हर्फ ना तो इखबार अनु होता है और ना इखबार बिही होता है, यानी ना तो ये मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह, ना महकूम होता है ना महकूम अलैह। और दूसरी अलामत यह है कि हर्फ इसम की जितनी आपने अलामतें पढ़ी हैं उनको भी कबूल नहीं करता, इसी तरह जो फेल की अलामतें हैं ये फेल की अलामतों को भी कबूल नहीं करता। वलिल हर्फ फी कलाम अरबी फवाइद, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह हर्फ का फायदा बयान फरमाते हैं कि हर्फ मुस्नद और मुस्नद इलैह तो अगरचे नहीं होता, लेकिन कलाम अरब में इसके बहुत सारे फायदे हैं। मिसाल के तौर पर फायदा नंबर एक, ये दो इसमों को आपस में जोड़ देता है। जैसे जईदुन फिद्दारी, जैद घर में है। अब फी ने आकर जैद और दार को आपस में जोड़ दिया, इनका रब्त पैदा कर दिया। और कभी हर्फ दो फेलों को आपस में जोड़ता है, जैसे उरीदु अन तज़रिबा, मेरा इरादा है कि तू मारे। अब अन ये हर्फ है, इसने उरीदु और तजरिबा के दरमियान एक रब्त पैदा कर दिया। और कभी हर्फ जो है इस्म और फेल के दरमियान रब्त को पैदा करता है, रब्त का फायदा देता है। जैसे ज़रबतु बिल खशबा, मैंने लकड़ी के साथ मारा। अब बा बा आप कहते रहे तो बात समझ में नहीं आएगी, इस बा के साथ आपने अल खशबा इसम को और ज़रबतु फेल को आपस में जोड़ दिया, इनका आपस में रब्त पैदा हो गया। और इसी तरह हर्फ कभी दो जुमलों के दरमियान भी रब्त का फायदा देता है। जैसे इन जानी जईदुन अकरमतु, अगर मेरे पास जैद आता तो मैं उसका इकराम करता। अब इन ने जानी जईदुन एक जुमला, अकरमतु दूसरा जुमला, दो जुमलों का आपस में रब्त पैदा कर दिया। वगैर दालिक मिनल फवाइद अल्लती तारिफुहा फिल क़िस्म सालिस इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हर्फ के सिर्फ यही फायदे नहीं है कि दो इसमों के दरमियान रब्त पैदा करे, दो फेलों के दरमियान रब्त पैदा करे, या एक इसम एक फेल के दरमियान रब्त पैदा करे, या दो जुमलों के दरमियान रब्त पैदा करे, बल्कि इसके अलावा भी हर्फ के बहुत सारे फायदे हैं। वो फायदे हम इंशाअल्लाह जब हरूफ की बहस आएगी किस्म सालिस में, उसमें इंशाअल्लाह बयान करेंगे। वयुसम्मा हरफन, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह हर्फ की वजह तस्मिया बयान फरमाते हैं कि हर्फ का लुग़वी माना होता है किनारा। हर्फ का लुग़वी माना होता है किनारा। तो चूंकि हर्फ भी इस लिहाज से एक किनारे पर वाक़ होता है कि हर्फ जो है ये मकसूद बिज़ात नहीं होता, बल्कि मकसूद बिज़ात तो फ़िल और इसम होता है, लेकिन हर्फ इन दोनों को आपस में जोड़ देता है। तो मकसद जो होता है वो इसम और फेल से हासिल हो रहा होता है। हर्फ मकसूद बिज़ात नहीं होता, उससे मकसद हासिल नहीं हो रहा होता, बल्कि हर्फ दो इसमों को, दो फेलों को, एक इसम दो एक फेल को, या दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। तो गोया ये कलाम के अंदर एक किनारे पर खड़ा है, जब जरूरत आई किनारे से उठाकर इसको ले आए, जब जरूरत पड़ी इसको किनारे पर डाल दिया, तो इसलिए इसको हर्फ कहते हैं। वही युसम्मा हरफन, और हर्फ को हर्फ कहते हैं लिवुक़ूइही फिल कलामी हरफन, इसलिए कि ये वाक़ होता है कलाम के अंदर हर्फ तरफ में, आई तरफन,
इस लई से मकसूदन बिज़ात, इसलिए कि ये मकसूद बिज़ात नहीं होता। मिसलु मिसाल के तौर पर जिस तरह के मुस्नद वल मुस्नद इलैहि, मुस्नद इलैहि मकसूद बिज़ात होते हैं, तो मुस्नद और मुस्नद इलैहि तो मकसूद बिज़ात होते हैं, लेकिन हर्फ ये मकसूद बिज़ात नहीं होता। व अलामतहु, फेल की अलामत ये है, अन यसिहल इखबारु बिही, कि उसके साथ तो खबर देना सही होता है, ला अन्हु, उसके बारे में खबर देना सही नहीं होता। वदुखूल कद, इसी तरह फेल की अलामत है कि उस पर कद दाखिल होता है, वसीनी, और सीन दाखिल होता है, वसौफा, और सौफा दाखिल होता है, वल जज्मी, और जज्म दाखिल होती है, वतसरीफ़ इलल माजी वल मुजारे, और इसी तरह फेल की अलामत है कि वो माजी का सिगा होता है और मुजारे का सिगा होता है। वकौनुहु अमरन औ नहयन, और फेल अमर का सिगा होता है या नहीं का सिगा होता है। व इत्तिसालु ज़माइरिल बारिज़तिल मरफ़ूआ, और मिली हुई होती हैं फेल के साथ ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ, ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ फेल के साथ मिली हुई होती हैं, जैसे ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबती, ताज़बता, ताज़ती, तापिश्तु, ये सारी ज़मीर बारिज़ हैं। व ताउ तानीस साकिनती, और मिली हुई होती है इसके साथ ताए तानीस साकिना, बल्कि ताऊ न पढ़े, ताई पढ़े, व ताइत तानीस साकिनती, ताए तानीस साकिना इसके साथ मिली हुई होती है, जैसे ज़रबत, यहाँ पर ताए तानीस साकिना मिली हुई है। व नून ये ताकीदी, और ताकीद के दो नून, यानी नून ताकीद खफीफा और नून ताकीद सकीला भी इसके आखिर में आते हैं। फ़इन्न कुल्ल हादिही, पस ये सारी अलामतें मिन खवासिल फ़ेली, फ़ेल के खवास में से हैं। व मानल इखबारी बिही, इखबार बिही का मतलब ये है, अन यकून महकूम बिही, के फ़ेल महकूम बिही होता है, मुस्नद होता है। महकूम बिही का मतलब मुस्नद होता है कि उसकी निस्बत दूसरे की तरफ की जाती है, फ़ेल की तरफ किसी की निस्बत नहीं होती। व युसम्मा फ़िअलन, और फ़ेल का नाम फ़ेल रखा जाता है, बिइस्मि असलिही, उसके असल की वजह से, और फ़ेल का असल वहुवल मस्दर, वो मस्दर है। लिअन्नल मस्दर हुआ फ़िअलुल फ़ाइल, इसलिए कि मस्दर ही फ़ाइल का फ़ाइल होता है हकीकतन। व हद्दुल हर्फ़ी, हर्फ की तारीफ, कलिमतुन ला तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा, ऐसा कलिमा जो मुस्तकिल अपने माने पर दलालत नहीं करता, बल तदुल्लु अला मानन फ़ी गैरिहा, बल्कि वो दलालत करता है उसके उस माने पर जो उसके गैर में पाया जाता है। नहवु, जैसे मिन, फ़इन्न मानाहा अल इब्तिदाउ, पस बेशक इसका माना है इब्तिदा, वही ला तदुल्लु अलैहि, और मिन इस इब्तिदा वाले माने पर दलालत नहीं करता, इल्ला बाद ज़िक्रि मा मिन्हुल इब्तिदा, मगर यह कि जिक्र किया जाए उस चीज को जिससे इब्तिदा हो रही हो। कल बसरा थी, जिस तरह के मिसाल के तौर पर बसरा और कूफा। मसलन मिसाल के तौर पर तकूलू, आप कहते हैं, सिरतु मिनल बसरती इलल कूफा, कि मैं बसरा से कूफा तक चला, चलने की इब्तिदा बसरा से हो रही है, तो जिससे इब्तिदा हो रही है आपके चलने की, आपने उसको जिक्र किया तो बात समझ में आई। व अलामतहु, हर्फ की अलामत यह है कि अल्लाह यसिहल इखबार अन्हु, कि वो इखबार अनहु भी नहीं हो सकता, वला बिही, और ना ही इखबार बिही हो सकता है। ना वो मुस्नद इलैह होता है, ना मुस्नद होता है, ना महकूम अलैह होता है, ना महकूम होता है। व अल्लाह यक़बिल अलामात अल अस्माई, और नहीं कबूल करता हर्फ इसम की अलामतों को, वला अलामात अल अफ़आली, और ना ही फ़ेलों की अलामतों को। वलिल हर्फी, और हर्फ के फ़ी कलाम अरबी, अरब कलाम में, फ़वाइदुन, बहुत सारे फ़ायदे हैं। कर रब्त बैनल इस्मैन, जिस तरह के दो इसमों के दरमियान रब्त पैदा करना। नहवु, जैसे ज़ैदुन फित्नार। अविल फ़िअलैन, या दो फ़ेलों के दरमियान रब्त पैदा करना। नहवु, जैसे उरीदु अन तज़रिबा। औ इस्मिन व फ़िअलिन, या एक इसम और एक फ़ेल के दरमियान रब्त पैदा करना, का ज़रबतु बिल खशबा। अविल जुमलतैन, या दो जुमलों के माबैन रब्त पैदा करना। नहवु, जैसे इन जानी ज़ैदुन अकरमतुहु। वग़ैरु ज़ालिका मिनल फ़वाइद अल्लती, इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो तारिफ़ुहा, आप पहचानेंगे, फिल क़िस्म सालिस इंशाअल्लाह ताला, किस्म सालिस में इंशाअल्लाह। व युसम्मा हरफन, हर्फ का नाम हर्फ रखा जाता है, लिवुक़ूइही फिल कलाम हरफन अय तरफन, इसलिए कि वो कलाम के अंदर आता है एक किनारे में। इज़ लैसा मक़सूदन बिज़ात, इसलिए कि हर्फ मक़सूद बिज़ात नहीं होता। मिस्लुल मुस्नद वल मुस्नद इलैह, जिस तरह के मुस्नद और मुस्नद इलैह मक़सूद बिज़ात होते हैं। तो आज के सबक में हमने सबसे पहले फ़ेल की अलामत पढ़ी, फ़ेल की अलामतों को याद करना है। फिर दूसरे नंबर पर पढ़ा कि इखबार बिही का क्या मतलब है। वही मतलब है कि इखबार बिही का मतलब है कि फेल महकूम बिही तो होता है कि उसके जरिए किसी और पर हुक्म लगाया जाता है,
महकूम अलैह नहीं होता कि उस पर कोई किसी चीज़ का हुक्म लगाया जाए। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि इकबार बिही का मतलब है कि फेल मुस्नद तो होता है, मुस्नद इलैह नहीं होता। उसके बाद आपने हर्फ की तारीफ पढ़ी कि हर्फ किसको कहते हैं, फिर उसके बाद हर्फ के आपने फ़ायदे पढ़ लिए कि हर्फ के क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर हर्फ को हर्फ कहते क्यों हैं, और इसी तरह आपने फेल की वजह तस्मिया पढ़ी कि फेल को फेल क्यों कहते हैं।